हेलो। السلام علیکم۔ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। خیریت سے ہیں آپ؟ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। میں آپ کی وائس سن رہا تھا گروپ میں ابھی، जी بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے آپ۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی جان؟ जी آپ کا نام کیا ہے؟ खालिद जाफर। خالد جعفر۔ اچھا اچھا، وہ آپ بہار والے ہیں؟ जी بہار سے ہیں बोलिए। نا آپ؟ जी 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 جی جی۔ اصل میں کچھ ایک دو چیزیں سمجھنا ہے آپ سے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو۔ बोलिए। جیسے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی تقلید کے تعلق سے بات کر رہے تھے، जी تو کوئی ایک مسئلہ جو ہے وہ صحیح سند سے امام صاحب سے ثابت ہے جس میں آپ ان کی تقلید کرتے ہیں، بتا سکتے ہیں آپ؟ सही सनद से मतलब بھئی جس کی سند صحیح ہو، مطلب امام صاحب تک پہنچتی ہو۔ नहीं सनद किसको बोलते हैं सही कुरान हदीस से बताइए। سند آپ کو نہیں پتا ہے؟ नहीं हमको नहीं पता, आप बताइए कुरान से हवाला देकर बताइए कि ये सनद है ये सही, क्योंकि आपने सही सनद की कायदे लगाई है तो हमको बताइएगा तब ना। دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے हाँ کہ اگر کوئی فاسق تمہیں آ کر خبر دے، हाँ اس کی اچھے سے جانچ پڑتال کر لو، اس کی हाँ تحقیق کر لو۔ माने फासिक। سنیے، हाँ हाँ फासिक अगर कोई تو खबर दे। اس آیت سے नहीं नहीं अच्छा बोलिए, علماء आप اہل बोलिए पहले। سنت نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے हाँ کہ یہاں سے جو راوی ہے، جو بیان کرنے والا بندہ ہے، हाँ اس کی تحقیق کی جائے گی کہ ठीक। بھئی وہ جھوٹا ہے، سچا ہے، نمازی پرہیزگار متقی ہے، یا ایسی آیا منہ اٹھایا اور کچھ بھی کہنا شروع کر دیا۔ تو اسی چیز کو سند کہا جاتا ہے۔ مثال کے کہنے کا طور پر مطلب یہ آپ ہوا ہیں آپ جو قرآن کی آیت جو آپ نے پڑھی حضرت، اس میں جی لکھا کہ کوئی اگر فاسق خبر لائے جی، تو اس کی بات کو نہیں مانی جائے گی، ہے نا؟ نہیں لیکن نہیں، اگر کوئی تحقیق نہیں کی نہیں جائے گی، تحقیق کی جائے گی، اس کو تحقیق کی جائے گی۔ تحقیق کرنے کے بعد مانی یہاں سے جائے گی۔ تحقیق کا مسئلہ نکل رہا ہے۔ ایک منٹ، فاسق کے لیے نا، ہوں ان اللہ کے کوئی نیک بندہ اگر خبر لے کے آئے گی تو اس کے لیے قرآن کیا بول رہا ہے؟ یہاں تو قرآن فاسق کا قید لگا رہا ہے، تحقیق کی قید فاسق کے لیے ہے۔ ہوں قرآن جو تحقیق کی قید لگا رہا ہے یہ ہوں فاسق کے لیے، آپ نے بھی کہا۔ ہوں۔ لیکن اگر کوئی نیک بندہ اگر کوئی خبر لائے تو آپ اس کو ان سے کیا اب بولیں گے؟ ان کا ان کا کیا بولنا تقدیر؟ دیکھا جائے گا، وہ کیا بول رہے ہیں۔ ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ مثال قرآن میں کے تو طور پر کوئی نیک مثال لوگ پیش نہیں نا، کیجیے آپ۔ قرآن میں نیک لوگوں کی قید ہے یا فاسق کی قید ہے؟ قرآن میں یہاں ہاں اس آیت میں فاسق کی قید لگائی گئی ہے ہے، نا، ہاں بالکل صحیح ٹھیک ہے، بات ہے، فاسق کی لیکن فاسق خبر لے کر قرآن کی آپ لیکن ہمیں وہ آیت بتائیے جہاں کوئی کہ اگر کوئی نیک بندہ خبر لے کے آئے تو اس کی بھی تحقیق کر لیا کرو، وہ تو سند مانے، اس کا ہم آیت پیش کیجیے۔ یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ کچھ بھی کہہ دے، اس کی ساری باتیں مان لینے کا ہے، ایسا؟ قرآن تو قید نہیں لگایا جا رہا ہے، قرآن تو قید قرآن میں نہیں تو لگایا۔ دیکھیے، اب اگر لفظ کے تعلق سے آپ آ رہے ہیں، نہیں نہیں لفظ کے میرے بھائی، تعلق سے نہ، قرآن ہمیں تقلید کا سنیے نا، حکم دے رہا ہے، بات ختم ہو گیا۔ تقلید ہمیں کا امام حکم دے ابو رہا ہے نا حنیفہ قرآن رحمۃ بھی، اللہ علیہ کے سند دیکھنے کی تو ضرورت پھر ہی نہیں آپ ہے، قرآن آپ کے آپ حکم سے بات آپ ختم۔ آرام سے بات کریں، میں وہی تو نہیں پوچھ میں رہا ہوں، آرام سے آپ بات کون کر رہا سے ہوں، مسائل میں امام صاحب کی آپ جو تقلید کرتے ہیں؟ حضرت میں نے آپ سے ابھی پوچھا تو آپ نے وہ آیت میں پڑھی نے جس میں بتا دیا آپ آپ نے کو۔ کہ قرآن فاسق کی قید لگا رہا ہے۔ نہیں، قرآن نے تحقیق کا حکم دیا ہے، فاسق نہیں کی کس قید کے لیے؟ لگائی ہے۔ فاسق آپ کا کی کوئی بات خبر یہاں لائے تک اس کی نہ درست ہے۔ تحقیق کی جائے گی؟ ایک سنیے منٹ۔ نا بھائی، ہاں آپ بولنے نہیں دے رہے، معذرت کے ساتھ میں آپ سے ہاں کہوں، ہاں ہاں آپ بولنے نہیں دے رہے۔ ہاں میں بولیے، نے آپ سے لیکن یہ آپ کہا میری تھا، بات سنیں گے پورا؟ ہاں آپ دیکھیے بیچ میں آپ بولنے لگتے ہیں۔ میں بولیے۔ نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن نے فاسق کی قید لگا دی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ آپ کا کہنا، آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ بھئی کوئی نیک بندہ اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات مان لینا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سبھی باتیں اس کی مان لینا ہے یا کچھ باتیں چھوڑ بھی دینا ہے؟ ہو گیا، آپ نے کہہ دیا۔ جی جی۔ چھوڑیں گے کیسے ہم؟ جب اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو چھوڑیں گے غلط نہیں خبر چھوڑیں گے، دے گا آپ نہیں۔ اپنا عقیدہ بیان کیجئے، چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ جب قرآن پورے قرآن میں تحقیق کا قید ہے فاسق کے لیے، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی نیک آدمی بھی خبر لے کر آوے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا تو قرآن میں کہیں اور نہیں ہے۔ نیک آدمی کے نام سے اگر کوئی فاسق بیان کرے کوئی نیک چیز، آدمی کے نام سے یا نیک آدمی دونوں نہیں، میں فرق نیک ہے۔ آدمی کے نام سے، ہوں جیسے رسول اللہ کی طرف ہوں ہوں بہت سارے جو راوی گزرے ہیں، ہوں انہوں نے جھوٹی جھوٹی باتیں منسوب کی نہیں ہیں بھائی، تو کہ، میرے بھائی اگر کوئی سنیے راوی تو، بولے گا، اب سے آپ وہاں پر بیچ پھر میں ایک پوائنٹ بولنے آ گیا۔ لگتے ہیں، ہاں آپ مجھے میرا نہیں، سینٹنس آپ میری پورا بات کرنے دیا۔ آپ تو میں جب بولنے لگتا ہوں تو آپ بیچ میں کاٹ دیتے ہیں نا، شاید آپ کو نہیں، ڈر ہے اب کچھ میں نے تو بات کا۔ آپ سے پوچھا ہے، ہوں آپ دوسری طرف چلے گئے۔ میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ اگر نیک بندہ کچھ بھی کہے، اس کی ساری باتیں مان لینا ہے یا کچھ چھوڑ بھی دینا ہے؟
अच्छा, तो आप ही हमें बता दीजिए कि नेक बंदा की कितनी बातें मान अरे लेनी भाई चाहिए और आप कितनी बताइए बातें ना, छोड़ देनी आपने चाहिए। मुझसे पूछा, मैंने मैं बता दिया। कुरान, अब मेरे आप बारे में तो ऐसी, कुरान कैद लगाया ही नहीं है, तो चलिए उनकी बातें मानी माशाल्लाह, जाएगी। इसका आपके पास में जवाब नहीं है, चलिए मैं नहीं बताता है हूँ, जवाब, है। मैं बता मेरा देता तो हूँ मतलब नेक बंदा अगर कोई आपको। खबर लाएगा तो मान लेना सुनिए ना है, भाई, भाई और मेरे, भाई फासिक मेरे, खबर लाए तो तहकीक करनी सुनिए है। सुनिए तो, हाँ हाँ हाँ। नेक बंदा कोई भी बात कहे उसको मान लेने का है, ऐसा है कोई ना भी बात आपका? मतलब, मतलब हाँ कुछ भी कहे हाँ। वो नेक बंदा। हम्म। तो इमाम अबू हनीफा से कोई बात सुनी है आपने? क्या डायरेक्ट, चीज? डायरेक्ट क्या कोई चीज? बात सुने हो इमाम साहब से? तो अच्छा, तो डायरेक्ट सुनना भी जरूरी है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं आप, हाँ। नहीं हैं? मैं नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, मैं भी नहीं सुना, किसी ने नहीं किसी की सुना? बात कोई नहीं सुना डायरेक्ट, नहीं नहीं ना नहीं, इमाम सुने बुखारी की, ना सुने। मुस्लिम की, ना जो अबू दाऊद की। जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल जो है वो बयान करते हैं उम्मत में, हम्म या आपका हम्म फेल हम्म हम्म बताते हैं, हम्म, तो उनमें ऐसे रावी हैं जिन पर झूठे होने की तोहमत है। अच्छा, हाँ, तो वो तो मैं, बुखारी में भी ऐसे रावी हैं। बुखारी में कौन सा रावी है झूठा बहुत भैया? सारे रावी हैं, खुद इमाम बुखारी एक का हम तो नाम शिया बताएं। रावियों से रिवायत लिए हैं, एकदम लिए हैं। नहीं, शिया रावी होना एक अलग बात है, झूठा रावी होना एक अलग बात है। शिया रावी होना ये मैंने कोई, शिया रावी होना अलग बात है, उसकी तहकीक भाई, नहीं की जाएगी। भाई सुनिए ना, इल्मी बात कीजिए, इल्मी बात। मैं न, मेरे भाई मैं ये वही तो शेख अभी आप बोल सरफराज दिए। खान सफदर कहते हैं कि शिया होना अरे कोई ऐब सरफराज खान नहीं है। सफदर, उनका सुनिए ना बात भाई, छोड़िए, वो तो भाई मुकल्लिद है। भागिए ना, भाई आप मेरे भागिए ना, भाई, हम भाग नहीं भाई रहे, आप भागिए ना। अभी देखिए, बोले। शिया होना मैंने शिया ऐब रावी कब अलग है? बात। हाँ सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ हाँ आप हाँ। इंशाल्लाह तैमुल से बात करेंगे तो इल्मी बात होगी। मैं इस जी जी ऑडियो को जी जी शाया जी करूंगा, लोगों के इल्म में इजाफा भी होगा। जी जी जी। शिया रावी जब तक अपने मजहब की तरफ दावत न दे, हम्म। उसकी रिवायत काबिल अच्छा कबूल अच्छा। है, और ये अहले सुन्नत ने कबूल ओ किया अच्छा, है। अहले क्योंकि सुन्नत आप ने भी, कबूल किया, सुनिए मतलब ना, अल्लाह रसूल ने नहीं कोई आप ऐसा बुखारी हुक्म को नहीं नहीं मानते फरमाया क्या? है। आप बुखारी को नहीं मानते क्या? हम तो मुकल्लिद हैं, हम तो मान लेते मानते हैं हैं। नहीं, माशा अल्लाह। इसी तरीके से जो हाँ, आपसे जब बड़े आलिम बुखारी को दीन हैं, मानते हैं, भाई जो सुनिए ना, हजार, एक मिनट, इसी तो तरीके से हजारों को जो इमाम बुखारी जो से अफजल इमाम आपके, अबू हनीफा को क्यों नहीं भाई मानेंगे? सुनिए ना, भाई सुनिए तो, भाई सुनिए, अरे नहीं नहीं, मानेंगे मैं ना, वहां बुखारी को आएंगे, आप मानता वहां हूँ, आना ही नहीं दे रहे मुझे। मैं तो आना मैं चाहता हूँ बुखारी को वहां, आप मुझे मानता बीच हूँ, में कुछ और और इमाम बुखारी हजारों से हजारों भाई गुना आप अफजल बीच में इमाम कोई अबू और हनीफा की मैसेज बात भी कर मानता लेते हूँ। हैं, इसीलिए मैं वहां नहीं पहुंचने दे रहा, आप जहां मैं जाना चाह रहा हूं। अभी मैं हाँ। पूछ रहा हूं आपसे, हम्म। बुखारी पर आपने ऐतराज किया कि उसमें शिया रावी मैं हैं, एतराज नहीं किया, जो कैद और आप लगा रहे हो कि अबू हनीफा की तरफ करना होगा तो भाई गलत हो जाएगा, इमाम अरे बुखारी वाला भाई, सही होगा। मतलब तो झूठे, आपने, मैंने जब आपसे कहा कि इमाम अबू हनीफा की बातें बयान करने वाले, आपका कौल फेल बयान करने वाले हम्म। ऐसे रावी भी हैं जिन पर झूठे होने की तोहमत है, यानी उनको हाँ मुहद्दिसीन ने कज्जाब कहा है, तो हाँ आपने उस पर ऐतराज किया बुखारी पर कि बुखारी में तो हाँ। शिया रावी हैं। मैं इसलिए एतराज तो मैं किया आपसे पूछ रहा हूं ना कि कि भाई जब आप शिवा, खैरुल आप शिया कुरून वाले रावी की, पर, खैरुल भाई कुरून सुनिए तो, वाले पर मुझे मेरे भाई, सेंटेंस पूरा जब करने दीजिए। देखिए, भाई अब जब, शिया रावी बुखारी में आ गए तो अब बुखारी को आप मानेंगे या नहीं? हाँ, अब मैं जवाब दूं। हाँ जी जी, बोलिए ना। अब मैं जवाब दे रहा हूँ कि खैरुल कुरून में जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर जमाना फरमाया है, जिनके दौर के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं, नेक लोग हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब अपने दौर के शिया रामियों से ले लेते हैं, तो उनसे बहुत बेहतर जमाना ताबई का जमाना, वो तो और ज्यादा अफजल होगा हमारे लिए। तो हम जब बुखारी आप को बात नहीं मानते हैं, समझे, नहीं मेरी बात सुन लीजिए आप पहले। रहो, आप जवाब नहीं दे रहे मुझे। नहीं, आप मैंने बीच में आपसे काट रहे हैं, सवाल पूरी ये बात किया था, मैं, आप बात आप गलत, काटते हैं। आप सुनिए ना, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि अरे मैं बुखारी जवाब में वही दे बकौल रहा हूँ कि आपके, जब हम भाई छोटे सुनिए इमाम तो ना, बुखारी से बात मानते हैं, तो बड़े इमाम अबू हनीफा की बात क्यों न यानी माने? यानी आप मानते हैं कि शिया रावी से भी रिवायत ली जा सकती है, पहले यहाँ क्या तो चीज रहे, में है? आप हाँ, मानते इमाम हैं कि, बुखारी रहमतुल्लाह ने लिया, देखिए अरे इमाम भाई बुखारी, आप उन्होंने मेरी बात लिया सुन ली। है, अच्छा है, आपका मौकफ जान रहा हूं मैं, आपने एतराज मैं किए थे ना, वही मैं बता रहा हूँ, मैं तो अब बता रहा हूँ शिया तो। शिया रावी से अरे भाई रिवायत मेरी ले सकते बात हैं तो क्या सुन नहीं, ये तो लीजिए, बताएं, इसको क्लियर वही करें मैं पहले। उसी का जवाब दे रहा हूँ कि जी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नेक बंदे हैं अल्लाह के। उन्होंने शिया रावी से लिया हो या मुतजला से, किसी से भी अगर लिया है, लेकिन चूंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो हम मान लेंगे, उनकी बात मान लेंगे, क्योंकि तो उन्होंने फिर सही उनकी लिया होगा, उनकी चाहे सारी रावी शिया, बातें अरे मान मेरी लीजिए बात ना तो फिर। सुन लीजिए, उनकी शिया रावी हो या सुन्नी रावी हो, मैं नहीं देखूंगा। मुझे इमाम अबू हनीफा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर एतमाद असल है, में इसलिए, आपको अरे मेरी एतमाद बात नहीं है, तो, अब मेरी आप बात बात सुनिए। क्यों, मेरी आपकी बात तो बात सुन हो गई लीजिए। ना भाई, सुन लिया मैंने। नहीं नहीं, आप बीच में काट रहे हैं, आप डर रहे हैं, पूरी चलिए बात सुन बोलिए लीजिए। बोलिए बोलिए।
तो जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नेक बंदे हैं तो उनकी बात लेंगे, हम ये नहीं देखेंगे, तहकीक नहीं करेंगे कि शिया है कि सुन्नी है कि मुतज़िला है कि क्या है। हम चलिए इमाम बुखारी माशाल्लाह, यानी रहमतुल्लाह आपका अलैह पर एतराज जो है एतमाद हो है। गई, आपकी बात हो गई, आप पूरी आपने बात जवाब सुने, दे नहीं नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, आगे बढ़ने अरे दीजिए, आगे भाई, बढ़ने दीजिए। अच्छा और तो बोलिए, इमाम चलिए। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से जो हजार दर्जा अफजल है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी के उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद हैं, परदादा उस्ताद है इलम में बाप के बाप हैं, तो उन पे मैं क्यों एतमाद नहीं करूंगा? जब हम छोटे दर्जे के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बात को एतमाद कर सकता हूं, तो बड़े दर्जे के इमाम बुखारी अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात को भी मैं एतमाद से चलिए मान लूंगा। हो गई आपकी अब बात, हाँ अब कंप्लीट हो गई, अब जवाब सुनिए आप। हाँ आप बोलिए। ठीक है, मेरे ये कहने पर कि इमाम अबू हनीफा से बातें बयान करने वाले जो है ऐसे रावी भी हैं जिनमें किज़्ब पाया जाता है, तो इन्होंने एतराज किया था बुखारी पर कि उसमें शिया छोटे रावी हैं। इमाम बहरहाल बुखारी पर, भाई बीच में छोटे ना इमाम बोले, बुखारी, देखिए बीच हम में ना बोलेंगे बोले बड़े इमाम अबू भाई, हनीफा, बीच में ना उन पे बोले, छोटे इमाम बुखारी। सब्र से काम लें, डरे ना, हाँ मैं बता तहम्मुल दूं, से काम लें। मैं तो वही तहम्मुल आपने से काम भाई ले रहा हूँ। सुनिए ना, बीच बुखारी में जब क्यों आप छोटे इमाम सुनिए ना बुखारी भाई, है भाई तो सुनिए बड़े तो इमाम अबू हनीफा की बात भाई, ज्यादा अभी मानी तो जाएगी ये ना? छोटे बड़े की बात ही नहीं चल रही, वहां नहीं, मैं छोटे बड़े की इंशाल्लाह बात आऊंगा। हम मानते हैं मेरे अभी भाई, अभी सुनिए मेरे ना भाई, नबी ने फरमा भाई दिया भागे खैरुल ना कुरून की बात भाई, है। भागे ना भाई, भाई नहीं मैं जवाब सुनिए, भागने वालों में से तो हूँ, भाई खामोश रहे ना। मैं उस हजरत तो उमर की भाई बात मानता सुनिए हूँ, मेरे मैं भाई उस, बात, अरे मेरे सुनिए भाई, ना भाई, किधर किधर जिनको भाग रहे हैं देख आप? करके भाई सुनिए शैतान ना भाग भाई, जाता भाई है। सुनिए तो भाई, भाई भागे ना, जी। सुनिए ना। आपने जो ऐतराज किया था कि बुखारी पर शिया रावी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद ही अपना रद्द कर दिया, हमें इस पर रद्द करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अच्छा, नहीं है, अच्छा, जब आपने इमाम एक बुखारी पे उसूल हमें पूरा अरे इत्मीनाद है। भाई, फिर बीच में आपने एक उसूल बयान किया था कि इमाम बुखारी क्योंकि आपके नजदीक छोटे इमाम हैं और इमाम अबू हनीफा बड़े इमाम है ना? बेशक ये मेरे तो नबी के हदीस से आप साबित इमाम है। बुखारी की हर बात इसलिए मानते हैं क्योंकि वो एक नेक आदमी है ना? बिल्कुल। तो इमाम बुखारी ने आपके इमाम के बारे में कहा है कि वो मुर्जिया थे, तो आप हाँ मानते हैं उनकी इस बात को? माशाल्लाह। अब मैं बोलूं, जी जी बोलिए। अब मैंने ये भी कहा, मैं बार बार बोल रहा था कि छोटे ना इमाम ना, ये बुखारी। उसूल काम नहीं आएगा। आपने कैद लगाई है नेक होने की कि इमाम हाँ बुखारी नेक हैं, हाँ। आपने कैद लगाई कि इमाम बुखारी की बात इसलिए ली जा रही है क्योंकि वो नेक इंसान है, और हाँ वही नेक इंसान कह रहे हैं कि अब उनसे इमाम अबू बड़े हनीफा नेक इंसान कौन मुर्जिया हुए? है। एक नहीं, भाई मैं नहीं इसे नहीं क्या नहीं, बोल रहा हूँ, नहीं ना नहीं ना नहीं, ना ना, आप अब मेरी ये बात इधर उधर की बातें नहीं। क्यों, अब आप या तो ना ना, अब फंस चुके हो, अब मैं इधर जवाब दूं, उधर की बातें नहीं। अब आप मैं या जवाब तो दूं। ये कहो कि इमाम अबू हनीफा नेक आदमी है, उनकी सारी बातें ली जाएंगी, तो उन सारी बातों में ये बात भी हम लेंगे कि इमाम अबू हनीफा मुर्जिया है। आप लेते हो हैं गया, उनकी ये बात, ये छोड़ अब मैं देते हैं? बोलूं, अब मैं जवाब दूं। मुझे इस चीज का जवाब दें कि अरे मैं आपने जो जवाब एक दूं, उसूल बयान किया था कि नेक आदमी, अल्लाह वाला बंदा, कोई कुछ भी कहे उसकी सारी बातें मान लेने का है, तो वही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस रहमुल्लाह, वो फरमा रहे हैं अमीरुल कि मोमिनीन हदीस फिर रहमुल्लाह, ये अल्लाह ने फरमाया कि रसूल ने इमाम अबू फरमाया। हनीफा रहमुल्लाह मुर्जिया हैं, मुर्जी हैं। अब मैं आप जवाब दूं, मानते हैं उन नेक आदमी की अब बात मैं या नहीं? जवाब दूं, अब मैं जवाब दूं। जी जी दीजिए ना। मैंने बार बार कहा छोटे इमाम बुखारी, नहीं अब नहीं बड़े इमाम, नहीं नहीं मैं बोला, मैं आपने कहा नेक आदमी, नहीं मैं बार बार आपने बोला कहा तो नेक आदमी की अरे सब मेरे बातें ली भाई, जाएंगी, अरे तो मेरे भाई वही आप तो नेक सुन आदमी तो कह ले। रहा है कि इमाम अबू हनीफा मुर्जिया है, तो आप अब मैं उनकी जवाब बात तो दूं, अब मैं जवाब दूं ना, आप तो मेरी बात सुनते नहीं है। अच्छा एक मिनट, आप हमें ये नहीं बताएं देखिए, कि आप इमाम अपने बुखारी उसूल की को मत तोड़ना। अब भाई मैं मेरे भाई अपने मेरी बात उसूल पर सुनो। ही, मैं बार बार छोटे और बड़े की कैद अच्छा, लगा रहा छोटे बड़े था। की कैद लगा रहे हो आप? हाँ ठीक हाँ। है। अच्छा, एक एक मुहद्दिस, एक इमाम लेकर आओ जिसने कहा हो कि इमाम अबू हनीफा ने ये वाली हदीस में आए हैं और उसकी सनद को किसी इमाम, किसी मुहद्दिस ने सही कहा हो। अच्छा एक हमने मिनट, तो तो बताया आप मेरे, अमीरुल अच्छा एक मोमिनीन सेकंड फिल एक हदीस है सेकंड इमाम एक बुखारी सेकंड एक सेकंड रहमतुल्लाह। एक सेकंड, अच्छा एक मिनट जी एक मिनट एक मिनट, जी जी। आपने, आपका क्या उसूल है पहले आप बताइए। हमारा उसूल तो ये है कि भाई कोई नेक आदमी हो, कोई नेक आदमी हो। कोई भी, हाँ हाँ अंबिया को छोड़कर, हाँ, उससे गलती हो सकती है। हो सकती है, ये हम आप भी नहीं मानते मानते हैं, क्या इस बात को? एकदम मानते हैं, हो सकती मानते है। हैं। अभी आप ग्रुप में बकवास कर रहे थे कि सबसे गलती हो सकती है, सबसे, लेकिन अहले हदीसों से नहीं हो सकती, ये आपका है ना? उसूल मैंने तो बताया ना। इमाम बुखारी रहमुल्लाह अरे मेरे रहमुल्लाह भाई, मैं अब ग्रुप आप में मुझे ये बोला, बताएं, इमाम अबू हनीफा के बारे में इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने जो कहा कि ये मुर्जी थे, तो उनकी ये गलती मैं है या क्या उनकी बोला, ये बात आप भी पूरी मानी बात में, जाएगी? अच्छा आप हमको बोलने क्यों नहीं देते, अपने डर क्यों रखते हैं? मैं क्यों डरूंगा मेरे भाई, अब मैं मैं तो जवाब दे आपकी रहा हूँ, बात,
आप मैं सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं जो जी। ग्रुप में बोला, ये मैंने अहले हदीस फिरका वालों पे तंज किया। अरे पूरी बात तो सुनिए, मैंने तो क्या यानी कहा। आप झूठ बोलते मैं हो आप क्या जब समझ रहे कि ग्रुप मैं में अहले होते हदीस हो फिरका आप वालों को दूसरी नबी बात मानता करते हूँ। हो, जब ग्रुप में होते हो जब और बात करते हो, और जब कॉल पर होते हो फिर और बात मैं करते हो। ग्रुप में जब बोल रहा बहरहाल हूँ, मैं आप जो बोल अपने रहा हूँ। उसूल से आजिज हैं, और एक मुझे एक अच्छा, आपने आप वो इतना डरते क्यों हैं? एक अहले हदीस मसला, फिरका वाला इतना मैं फिर वहीं बुज़दिल आता क्यों हूँ होता है? जहां हम शुरू में अहले थे। हदीस फिरका वाला इतना आपने बुज़दिल एक क्यों होता है मेरे मसला भाई? वो बयान नहीं किया जिसमें आप इमाम साहब की तकलीद करते हैं। आप अरे वो भाई, तो मसला बयान करें जरा। अब मैं जो पूछ रहा हूँ, आपका उसूल क्या है अरे पहले बताइए। वो हो अरे गया, आप लोग रिकॉर्ड उसूल हो तो गया, लोग बताएं, सुन आप अपने लेंगे। उसूल में डर क्यों रहे हैं? हमने तो कहा कि अंबिया के बाद में कोई भी गैर नबी है उससे हाँ, गलती होने का इम्कान है। इमाम अबू हनीफा से भी गलतियां हुई हैं, हुई इमाम है। शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, यहाँ तक और के इमाम एक बुखारी मिनट, रहीमुल्लाह। भाई एक सबसे सेकंड, गलती हो एक सकती है हो इंसान सकती है होने कि के हुई नाते। है। एक मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इस पर हदीस भी है, समझे नहीं है? आप मैं जवाब दूं, तो आप मैं जवाब दूं। जिसे अब आपका उसूल ये है कि हमको हर नेक आदमी की हर बात मानने का है, नहीं लेकिन नहीं, जब अब हमने इमाम आप बुखारी एक का आपको मिनट, कौल अब मैं दिखाया जवाब आप भाग दिया। रहे। अच्छा, मैं सवाल करूं, आप जो अभी बोले कि हर आदमी से गलतियां हो सकती हैं आपके जी बकौल, अभी जी आपने कहा नबी के बाद आपने कहा ना। जी 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 हम्म जी। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत बाद के हुए, उनसे ऊपर इमाम अबू हनीफा, उनसे भाई ऊपर हम तो सहाबे मान रहे रसूल हैं हैं। अरे सबसे मेरी बात गलती तो हो सुन लीजिए। सकती है, हम तो कह रहे हैं ना। गलतियां हुई हैं कि लेकिन नहीं? आपका ये उसूल नहीं है, आपका उसूल ये है कि अल्लाह वाले की हर बात मानने का है। तो इमाम बुखारी की नहीं, बात क्यों नहीं मान रहे? बोलो इमाम अबू हनीफा मुर्जी थे। अब एक मिनट, आप मेरी बात तो अच्छा, आप अरे डरते क्यों, बीच में काट क्यों रहे हैं? आप बोलो कि इमाम बुखारी ने सही कहा है, बात खत्म। एक मिनट, एक सेकंड। आप हमें ये बताओ कि अल्लाह के रसूल के बाद सबसे गलतियां हो सकती हैं, तो गलतियां हुई हैं कि नहीं, ये बताइए। इतना डर, इतना अबे भाई खौफ। तुम लोगों को कुछ आता जाता नहीं है यार, अरे क्यों मेरे ग्रुप भाई में तुम डरो मत, मैं मत बात हजरत किया उमर करो, का तुम मानने लोगों की वाला हूँ। हैसियत नहीं है बात करने की, तो फिर फोन समझे क्यों नहीं? करते हो बुज़दिल कॉल साहब? इसलिए करते हैं ताकि लोगों को आपकी जहालत दिखाएं। आपने एक अरे मैं उसूल तो गढ़ा था ना ग्रुप में ग्रुप अहले में। हदीस फिरका वालों को भाई नंगा कर रहा आपने हूँ। ग्रुप में एक उसूल गढ़ा था कि नेक आदमी की हर बात माननी है। इमाम बुखारी से नेक कौन है? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का लक़ब दिया है उनको मुहद्दिसीन ने, कौन दिया, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह कौन वगैरह दिया? ने। एक मिनट, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस ये कौन लक़ब इमाम दिया? ज़हबी, इमाम इब्न हजर, एक इमाम रहबी जमात है अल्लाह के सलफ। नबी है। अल्हम्दुलिल्लाह। माज़अल्लाह, नहीं, अल्लाह के अस्तगफिरुल्लाह। नबी की इमाम बात दहबी मानना नबी है, होता, सुनिए ना भाई। अस्तगफिरुल्लाह। आपका ये रफेदैन उसूल फिरका नहीं है ना। वालों पे लानत, इमाम ओ दहबी को मेरे अल्लाह का भाई नबी देखिए, बना दिया, लानत वलानत मत अस्तगफिरुल्लाह। कीजिए, आप शिया नहीं, मत आपने बनिए। अभी कहा कि इमाम दहबी अल्लाह के नबी आप है, मुझे ये नौज़ुबिल्लाह, बताएं, अस्तगफिरुल्लाह, आपका ये उसूल है कि नहीं अस्तगफिरुल्लाह। कि हर नेक आदमी की बात ली जाएगी? तो आप आप बोले थे बताएं, ग्रुप में नहीं? आप ये बताएं अरे कि आप ग्रुप में मुहद्दिसीन बोले थे या नहीं? क्या चीज? यही कि नेक आदमी की हर बात ली जाएगी। मैं तो अहले हदीस फिरका वालों पे अरे तंज किया। आप जाओ, मेरा आपसे वीडियो नहीं लाइए, होगा, आप मेरा फोन रखो, वीडियो मैं लाइए। इंशाल्लाह जुमे के बाद डालता हूँ आपकी जिल्लत।